केस पेंडिंग है इंदौर में, जिसको भी नीमच ट्रांसफर कर देते हैं, सारे केसेस एक डेट पे लगा देते हैं, जल्दी डिसीजन हो जाएगा। क्योंकि इंदौर में पेंडेंसी बहुत ज्यादा है फैमिली कोर्ट में, नीमच में बहुत कम है, वहाँ सारे केसेस जल्दी डिसाइड हो जाएंगे। सर मुझे ट्रैवल करना पड़ेगा ना सर, मेरी हार्डशिप बहुत ज्यादा रहेगी उधर। दोनों के बेनिफिट के लिए रहेगा। उधर मेरी हार्डशिप बहुत ज्यादा है सर। वो तो सर हैप्पी हो जाएंगे क्योंकि उनके लिए सेटलमेंट इजीली हो जाएगा, मेरे को परेशान कर करके। उनके लिए तो बेनिफिट हो जाएगा सर। क्या बेनिफिट होता है? उनका पर्पस ही मैं आके परेशान हो जाऊँ, मैं सेटलमेंट करूँ उनके हाई अमाउंट पर। पर्पस ही वही है सर। नहीं तो सर 498 के बाद सेक्शन 9 कौन लगाता है सर? प्लीज परमिट मी इन पर्सन। Sir, this is a transfer petition under CPC 24, the transfer of the case RCS HM 84/2024, which is section 9, which is pending at Neemach Family Court to Indore. Sir, here the respondent mislead the honorable court. One side she agreed for the divorce at Sindhi Panchayat, and even she approached for it. Later she filed 498 another other cases. So the respondent contrary actions reveal her malified intention. Additionally, sir, she accused me that I'm demanding dowry, I'm committing physical violence, but really she want to live with me. So, sir, this in short, the रावण जैसी दुर्भावना लेकर राम बनने का छल किया जा रहा है इधर. And sir, the grounds of the transfer, sir, that she is living continuously here, and I have attached 4 months for January, February, March, till that I have since 6 April. Test it, and we can go through that page number 27. So this is continued, sir. She is living here, and sir, continuous picture. And sir, this is the recent pictures which I taken, so it can confirm till date also. So what do you want? Sir, actually, I want the transfer of that case to Indore. Why? So because I have a lot of challenges. My father is recently go through a ear surgery, and he also has some asthma attack. My mother has also leg fracture, so I need to take care. Additionally, I have the fish issue also. My employer is not absent with me because I am taking lot of leave. And to travel Neemach, sir, it is very difficult for me because I need to catch a train at the night 3 p.m. to save 2 days. So it will take 1 day but every time need to catch the train at night. It is a very difficult situation for me. And sir, I have also attached this time the proof of the internet which they are using there. So it is also concrete proof that they are living there. And sir, I have also witness which can testify she is living there. So sir, this is it will benefit for applicant as well as the respondent to transfer the case in Indore. The wife had filed an application for transfer. Yeah, sir. Indore to Neemach. On that, the direction was that she can appear through video conferencing. Yes, sir. You gave the order, sir. That is on time. Yes, sir. Now, these proceedings which you want to be transferred. Yes, sir. When were they filed? Sir, it's near 25 May. It's near 25 May 2024. But at that time, at the time of hearing of this application, yes, filed by the wife, yes, you did not say anything in that regard about those proceedings that you want them also to be transferred. Actually, an order could have been passed. एक्चुअली सर मैं उधर नीचे कोर्ट में बोलने गया, लेकिन मुझे उस समय एडवोकेट नहीं था तो मुझे परमिट नहीं किया गया था। नहीं, यहाँ तो नहीं बताया ना आपने कि आप भी ट्रांसफर चाह रहे हैं। मैंने अभी सर अप्लाई किया जैसे आफ्टर 10 मार्च से। तो पूछ रहे हैं कि तब क्यों नहीं किया? तो मुझे जब रेमेडी का पता चला तब मैंने किया ना सर, आया उस समय। सर मैंने ना आपको केस के लिए तो पहले इन्फॉर्मेशन बता दी थी कि इन्होंने 4 केस करे, बट आई इन्फॉर्म यू एट दैट टाइम। इनफैक्ट रिवर्स करते हैं, ये जो केस पेंडिंग है इंदौर में, जिसको भी नीमच ट्रांसफर कर देते हैं, सारे केसेस एक डेट पे लगा देते हैं, जल्दी डिसीजन हो जाएगा। क्योंकि इंदौर में पेंडेंसी बहुत ज्यादा है फैमिली कोर्ट में, नीमच में बहुत कम है, वहाँ सारे केसेस जल्दी डिसाइड हो जाएंगे। सर मुझे ट्रैवल करना पड़ेगा ना सर, मेरी हार्डशिप बहुत ज्यादा रहेगी उधर। दोनों के बेनिफिट के लिए रहेगा सर। उधर मेरे लिए हार्डशिप बहुत ज्यादा है सर। वो तो सर हैप्पी हो जाएंगे क्योंकि उनके लिए सेटलमेंट इजीली हो जाएगा, मेरे को परेशान कर करके। उनके लिए तो बेनिफिट हो जाएगा सर। क्या बेनिफिट होता है? उनका पर्पस ही मैं आके परेशान हो जाऊं, मैं सेटलमेंट करूं उनके हाई अमाउंट पर। पर्पस ही वही है सर।
नहीं तो सर 498 के बाद सेक्शन 9 कौन लगाता है सर फिर? तो सर पूरी मेलाफाइड इंटेंशन ही थी। आपने एक एमसीआरसी भी फाइल की है, यस सर। वो किसके लिए की है? सर वो मैंने एक्चुअली इसमें ही करा था कि वो मेंटेनेंस की ट्रांसफर करने के लिए, लेकिन वो सेक्शन 447 यूज होगा, मेंटेबिलिटी आ गया था, तो इसलिए वो मैंने सर अनदर एप्लीकेशन एमसीआरसी में 447 फाइल किया है, बीएनएस। आई थिंक वो सीपीसी 24 में नहीं आएगा। ये एमसीआरसी 4197/9/24 पेंडिंग है। अच्छा, ये दिस इज क्वेश्चन ऑफ द 41979, दिस इज a question of the that Sarjori cases, that fake FIR, झूठी FIR का क्वेश्चन है सर, वहां पे भी वो डिले कर रहे हैं डेली। ये फोटोग्राफ के अलावा और क्या प्रूफ है कि वो इंदौर में रेसाइड करता है? सर आई हैव टेकन द पिक्चर। फोटोग्राफ के अलावा? यस, फोटोग्राफ के अलावा विटनेस कैन बी अवेलेबल, द इंटरनेट कनेक्शन इज अ कॉन्क्रीट प्रूफ। इंटरनेट कनेक्शन से प्लेस ऑफ रेसिडेंस हो जाता है? सर मतलब यूज कर रहे हैं इसलिए, लॉन्ग टाइम से रह रहे हैं तो इसलिए उन्होंने अपने नाम पे ही लिया है। सर ड्यू टू प्राइवेसी do not give that invoice, but I have the router picture, and so we can summon. So if you allow, we can also use section 94 of BNS to issue summon for the production of invoice. If you allow. ये सब ट्रांसफर पिटीशन में यहाँ ऐसी इंक्वायरी थोड़ी करेंगे? Yes sir, this is all a concrete evidence. My lord, this is living here. हाईकोर्ट में आप कितने केस लगा चुके हो? These are the only cases. नहीं, आप बोल रहे ना इक्वाइशमेंट भी लगाया है, कोई और भी ट्रांसफर लगाया है? ट्रांसफर सर, दिस ट्रांसफर ऑफ मेंटेनेंस केस, इसमें मेंटेनेबिलिटी में क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने एको लगाया था। मेंटेनेबिलिटी का क्वेश्चन आया तो क्या किया आपने उसका? सर मैंने न्यू एमसीआरसी रेज किया ना, दैट इज अंडर 447 बीएनएस, जो क्रिमिनल केस में आता है आपका मेंटेनेंस केस। इसमें जो आप ट्रांसफर चाह रहे हैं एमजेसीआर 130 ऑफ 2024 का, यस सर, उसी के लिए आपने ऑलरेडी एक केस फाइल करके रखा है ट्रांसफर? हाँ, वो मेंटेलिबिलिटी के बाद फाइल किया रिसेंटली, 3 अप्रैल रिसेंटली एरर आया था डिफॉल्ट, उसके बाद फाइल किया। क्या है उसका नंबर? सर उसका नंबर है 15596/2025 एमसीआरसी। तो जब आपने उसका ट्रांसफर ऑलरेडी चाहा हुआ है, तो फिर यहाँ कैसे उसका ट्रांसफर चाह सकते हैं? एक चीज के लिए दो पिटीशन कैसे चले? नो सर, दिस इज फॉर सेक्शन 9 स्पेशली। स्पेशली नहीं, आपकी प्रेयर देखिए, आपने दोनों का ट्रांसफर चाहा। एक्चुअली वो तो उन्होंने करेक्शन नहीं किया। छोड़िए, जो लिखा है वो पढ़िए। सर उन्होंने करेक्शन नहीं किया ना, इसलिए तो मैंने दूसरी एप्लीकेशन लगाई। मुझे पता नहीं था पहले कि सीपी 24 में दोनों आएंगे कि नहीं आएंगे, इसलिए मैंने उस हिसाब से ड्राफ्ट किया था। फिर लेटर मुझे पता ये एरर आया है, तो मैंने फिर न्यू एप्लीकेशन ड्राफ्ट किया अंडर 447। दैट इज द इशू सर। ये एमसीआरसी 15596/25 आज की डेट में पेंडिंग है कि नहीं है? आज की डेट में पेंडिंग है सर, आज ही लगा है वो। तो फिर एक रिलीफ के लिए दो पिटीशन कैसे चल सकती है, सिविल में भी और क्रिमिनल में भी? सर आई थिंक सीपी 24 इज फॉर एचएमए कंसिडर किया गया है, एमसीआरसी मतलब वो जो अनदर केस है मेंटेनेंस के लिए, उसके लिए 447 मेरे को यूज करने के लिए बोला है। डिफॉल्ट में आया था इसलिए मैंने सर ऐसा किया है। अगर इसमें ही हो जाता है तो नो प्रॉब्लम सर, वो मुझे पता है। आपके कन्वीनियंस के हिसाब से तो मुझे पता नहीं रूल, इसलिए मैंने दोनों कर दिया। दैट इज योर प्रॉब्लम, नॉट माय प्रॉब्लम। आई हैव टू गो विद द रूल्स। इफ यू आर नॉट अवेयर, मेक योरसेल्फ अवेयर। सो यू कैन कंसीडर दिस इज फॉर सेक्शन 9 ओनली। ऐसा नहीं होता। चलिए आज पहले वो एमसीआरसी की बहस कर लीजिए, फिर उसको देखेंगे। सर वो आई थिंक नॉट रीच जाएगा, मोर 141 देखेंगे, आगे देखेंगे। यस, वो फाइल बोला के हम देखेंगे। ओके फिर ऑर्डर। थैंक यू।